اور اس کے بعد اقرار الحسن وہاں پہ بغیر کسی رزلٹ کے نکلتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جو جھوٹ مجھے لگا. وہاں پر حق خطیب صاحب نے لوگوں کو اشتعال دلایا اور لوگوں نے وہاں پر ہمیں مارا, ہمارے کیمرے چھینے, ہمارا بہت برا حال کیا. ہم بڑی ہی مشکل سے وہاں سے نکلے ہیں. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے تو السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اولیاء اکرام اور ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں, وہ اس وقت پاکستان کے اس ٹرینڈنگ ٹاپک اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان کیا چل رہا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اور آخر ایسی گیان و بتان پڑی تھی کہ اتنے سالوں بعد اقرار الحسن کو یاد آیا کہ پاکستان کی ایک ایسی شخصیت جس کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اولیاء اکرام کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں, وہ اس شخصیت یعنی کہ حق خطیب صاحب کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے. ان کو ایکسپوز کرنا پڑ گیا. آج کی اس ویڈیو میں سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. نہ میں حق خطیب صاحب کا ساتھ دوں گا, نہ میں اقرار الحسن صاحب کا ساتھ دوں گا. ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور وہ باتیں رکھوں گا جو شاید آپ ابھی تک نہیں جانتے کہ آخر اقرار الحسن نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. دوستو, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ برِ صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں اولیاء اکرام اور ولیوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے, اور ان کے سامنے اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن آ کر جب بیٹھتا تھا اور چند منٹ گفتگو کرتا تھا, وہ اسلام کا دشمن نہیں بلکہ اسلام کا سپاہی بن جاتا تھا, اور اسلام کے نام پر مرنے مٹنے اور شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اولیاء اکرام کی ایسی کرامتیں ہوا کرتی تھی. اور پھر جب وقت گزرتا گیا اور لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ لوگ پریشان جب ہوتے ہیں تو اولیاء اکرام کے دربار پر جاتے ہیں, درگاہوں پر جاتے ہیں, ولیوں سے ملتے ہیں, اپنے دل کا حال سناتے ہیں, تو انہی نیک لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا, اور اسی طرح کے لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ٹی وی اینکرز نے بھی, پاکستان میں, انڈیا میں اور بہت ساری جگہوں پر. اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا جن کے چاہنے والوں کی تعداد لا تعداد تھی, اور انہی میں سے اقرار الحسن بھی سامنے آئے. اقرار الحسن نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے, جیسے کہ اسمبلی میں اسلحہ لے کر گھس جانا اور وہاں پر یہ ثابت کرنا کہ یہاں پر ملک کو چلانے والی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن وہ بہت طاقت رکھتے ہیں اور اس ملک کو سنبھالنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن میرے جیسا شخص یہاں پر اسلحہ لے کر اندر آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کی سیکیورٹی بالکل ناکام ہے. اتنا بڑا کارنامہ کر کے جب اقرار الحسن نے دکھایا تو پورے پاکستان میں واہ واہ ہو گئی. اقرار الحسن کے اس کارنامے کے بعد ان کی واہ واہ تو ہوئی, لیکن ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. لیکن اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی, یہ باہر آ گئے, اور اس کے بعد انہوں نے FIA, IB اور نہ جانے کون کون سی ایجنسی پر ہاتھ ڈالا, اور ان کے ایسے لوگ جو کہ لوگوں سے رشوت لیتے تھے, لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے, پولیس کے بڑے بڑے لوگ, CIA کے بڑے بڑے لوگ, ان کو ایکسپوز کیا. اقرار الحسن جو کہ ایک چھوٹے سے نارمل سے اینکر تھے, لیکن اپنی دلیری کی وجہ سے یہ پاکستان میں اپنا اتنا نام بنا چکے تھے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی لاتعداد ہو چکی تھی. لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے, اور بہت ساری مظلوم لڑکیاں اپنا دکھڑا لے کر ان کے پاس جاتی اور یہ ان کی مدد کرتے. ان کو بلیک میلر سے اور ایسے لوگوں کے جو انہیں دھندوں میں پھنسا چکے تھے, ان کو غلط کاموں میں لگا چکے تھے, اقرار الحسن ان کو وہاں سے نکالتے. اور ان میں سے بہت ساری ایسی بھی لڑکیاں تھیں جن کا تعلق بہت ہی شریف گھرانے سے تھا, اور اقرار الحسن نے ان کی مدد کی, کیونکہ وہ پیار اور محبت کے چکر میں ایسے دھندے والوں کے ہاتھوں میں چڑھ گئی جنہوں نے ان کے ساتھ ریپ بھی کیا, ویڈیوز بھی بنائی اور ان ویڈیوز کو پبلک بھی کیا, اور اس کے بعد ان کو بلیک میل بھی کرتے رہے, ان سے پیسہ بھی لیتے رہے اور ان کو استعمال بھی کرتے رہے. اقرار الحسن اپنے اتنے بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے اور اتنی دلیری کی وجہ سے پاکستان میں مشہور اینکر بن چکے تھے. لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے. لیکن پھر اصل معاملہ حق خطیب اور اقرار الحسن کے درمیان کب اور کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ ایسے شروع ہوتا ہے, اقرار الحسن نے جب بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر حق خطیب بادشاہ کا بہت زیادہ نام ہونے لگ گیا, ان کے بہت زیادہ کلپ وائرل ہونے لگے. کبھی وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے شخص کو شف کرتے اور وہ اٹھ جاتا, اور اٹھ کے بعد چلنے لگ جاتا, اور اس کے بعد کچھ ایسی لڑکیاں بھی آئیں جن کی آنکھوں میں سے کیلیں بھی نکلی, زنجیر بھی نکلی, اور بہت سارے ایسے معاملات. بازو سے انہوں نے بہت ساری چیزیں نکالی, بہت ساری کیلیں نکالی, زخم ٹھیک کیے. کچھ ایسے بچے, بوڑھے, عورتیں, جوان لڑکیاں بھی آتی تھی جن پر جنات کے بہت برے اثرات ہوتے تھے, اور خطیب صاحب ان پر دم کرتے تھے اور فوراً وہ جن اس سے نکل جاتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. کچھ ایسی لڑکیاں بھی دکھائی گئیں جن کی آنکھوں سے خون نکلتا تھا, اور اس کا جب انٹرویو کیا گیا تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ اس کے ساتھ اقرار الحسن
हसन ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ARY का रमजान शो जो कि इकरारुल हसन और वसीम बदामी होस्ट कर रहे थे, उस शो में एक ऐसी लड़की आती है जिसकी आंखों से खून निकलता था और उसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। वहां पे इकरारुल हसन ने लोगों के साथ अपील की तो एक शख्स ने कहा कि मैं इस बच्ची के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपया दूंगा, या फिर बहुत सारे लोगों का मिला के तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनता था। ये शो तो रमजान में चल गया और इकरारुल हसन ने बहुत फख्र महसूस किया कि उनके कहने पर बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा दिया है कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन इस बच्ची के इलाज के लिए जमा हो गया है। लेकिन फिर वक्त गुजर गया और इस लड़की का एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो कहती हैं कि इकरारुल हसन मेरे करोड़ों रुपए खा गए हैं, इकरारुल हसन ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, लोगों ने मेरे इलाज के लिए इनको पैसा दिया और इन्होंने मुझे नहीं दिया। इकरारुल हसन फिर सामने आए और उन्होंने कहा, सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि ये माँ बेटियां पैसा कमाने का एक ढोंग रचा रही हैं, इसको असल में कोई बीमारी ऐसी है नहीं। ये पैसा कमाने के लिए इनके पास जितना भी पैसा आ जाएगा ना तो ये इलाज करवाएंगे और ना ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। और जो पैसा वहां पर लोगों ने अनाउंस किया था वो लोगों ने दिया ही नहीं, और अगर दिया भी होगा तो ARY के पास आया होगा, मेरी जेब में नहीं आया, ना ही मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद ये लड़की पहुंचती है हक खतीब साहब के पास और वहां पर एक ऐसा शख्स जो कि इकरारुल हसन साहब का कुलीग रह चुका है वो इंटरव्यू करता है और वो सारी बातें ऐसी करता है जो कि वायरल हो जाती हैं। उसके बाद लोग जो हैं वो इकरारुल हसन को टैग करने लग जाते हैं और उन पर तनकीद करने लग जाते हैं। आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने दिलेर बनते हैं और बड़े बड़े कारनामे आपने करके दिखाया, कभी आपने FIA पे छापा मारा, कभी आपने CIA पे, कभी आपने IB पर, कभी आप असेंबली में चले जाते हैं, कभी आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स को पकड़ते हैं। हक खतीब साहब की वीडियोस उनके साथ टैग की जाती थी, उन पर तनकीद की जाती थी। अब इकरारुल हसन जो है अंदरूने खाना इस पर काम करने लग गए कि आखिर ये किस तरह से चेनें निकाली जाती हैं आंखों से, किस तरह से मुंह से कीलें निकाली जाती हैं, और फिर इन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो ये सब कुछ कर सकते थे। और उसके बाद इकरारुल हसन मैदान में आए क्योंकि इकरारुल हसन को ये कहा जा रहा था कि आपसे दिलेर तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है जो कि हक खतीब साहब के खिलाफ बात करते हैं या हक खतीब साहब को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिनके पास ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना कोई पावर है, ना कोई ओहदा है, अब उनके हवाले से जब ये बात की जा रही थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कि सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं, इतने मशहूर हैं, उनकी ना तो सिक्योरिटी होती है ना उनके पास पावर होती है, वो हक खतीब साहब को एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद नासिर मदनी साहब जो कि बड़े ही कॉमेडी अंदाज में बहुत सारी चीजें बयान करते हैं, उन्होंने भी आड़े हाथों हक खतीब साहब को लिया। लेकिन होता यह है कि मदनी साहब को हक खतीब साहब के चाहने वाले उठाकर ले जाते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं, बहुत ही उन्हें मारते पीटते हैं और फिर नासिर मदनी को छोड़ देते हैं। नासिर मदनी साहब सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि हक खतीब साहब के चाहने वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, और वो बहुत बड़ा एक केस बनता है, दूसरी पार्टी भी सामने आती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर हक खतीब साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं और एक बहुत बड़ी कैंपेन चलने लग जाती है। हक खतीब साहब ये करते हैं कि अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ नासिर मदनी साहब की इयादत के लिए पहुंचते हैं और उनको राजी करते हैं, और राजी करने के बाद सोशल मीडिया पर ये आता है कि दो हम भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सारा मामला तो उन लोगों का था जो कि मेंबर पर बैठते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर मशहूर है, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर वो लोग जो कि आम लोग होते हैं वो हक खतीब साहब के खिलाफ वीडियोस बनाने लग जाते हैं। जब वो लोग वीडियोस बनाने लग जाते हैं तो फिर इकरारुल हसन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है कि तुम अपने आप को इतना दिलेर एंकर समझते हो और समझते हो कि तुमने पाकिस्तान में बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज किए हैं, तो हक खतीब साहब को एक्सपोज क्यों नहीं करते? अब इकरारुल हसन पर इतना ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर वो क्या करते हैं, उन सारे लोगों को लेकर आते हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे थे और ऐसे लोगों को तैयार कर रहे थे जो कि मुंह से कीले भी निकाल सकते हैं, जिनकी आंखों से वो चेन भी निकाल सकते हैं, उन सारे लोगों को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं हक खतीब साहब को एक्सपोज करने जा रहा हूं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हक खतीब साहब कोई करामत नहीं बल्कि ट्रिक्स आजमाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि हक खतीब साहब सच्चे हैं, इकरारुल हसन सच्चे हैं, लेकिन मैं सारे का सारा मामला आपके सामने रखता हूं। अब इकरारुल हसन साहब जो है वो सारी ट्रिक्स करके दिखाते हैं, एक बंदे को बुलाते हैं जो अपने मुंह से कीलें भी ज्यादा निकाल के दिखाता है हक खतीब साहब से, और लड़की की आंख से चेन भी निकाल कर दिखाते हैं और पब्लिक में निकाल कर दिखाते हैं, और बहुत बड़ा शो उनका आता है और सोशल मीडिया पर एकदम से धमाका हो जाता है कि इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं हक खतीब साहब के आमने सामने बैठकर सब कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ और बहुत सारे सवालात करना चाहता हूँ जिनके हक खतीब साहब जवाब देंगे, या तो मैं उनको अपना पीर मान लूंगा या वो मुझे
सैयद इकरारुल हसन पीर मान लेंगे। अब जब ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो उसके पीछे कहानी ये थी कि बेसिकली हाक खतीब साहब के पास करोड़ों रुपए की जायदाद है। वो कभी पाकिस्तान होते हैं, कभी उनके चाहने वाले उनको इंग्लैंड बुलाते हैं, कभी स्पेन बुलाते हैं, पूरी दुनिया वो घूमते रहते हैं। अब जाहिर है कि एक एंकर के पास इस तरह की चीजें आ रही हैं और वो एंकर जो कि सिर्फ काम यही करता है दुनिया को एक्सपोज करने का, तो अब वो क्या करते हैं कि वो उनको धमकी देते हैं या फिर उनको कहते हैं कि भाई ये वीडियो आई है, अब इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी। हक खतीब साहब के करीबी शख्स ने उनको ये कहा कि 14 फरवरी को आप हमारे हक खतीब बादशाह के आस्थाने पर आप आएंगे और आप दोनों की मीटिंग करवाई जाएगी, फेस टू फेस आप लोग बात करेंगे। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि वहां पर उन्होंने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख दिया है। अब खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी है और फिर हक खतीब साहब के चाहने वालों की तादाद भी लातादाद है, लाखों की तादाद में लोग हैं और वहां पर इतने ज्यादा लोग होते हैं कि इकरारुल हसन वहां पर पहुंचते हैं तो यकीनन उनको डर भी लग रहा होगा कि इतने ज्यादा लोगों में यहां पर इकरारुल हसन की दिलेरी को दाद देनी पड़ेगी कि वहां पर जहां लोग हक खतीब साहब के नाम पर मरते मिटते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद होता यह है कि हक खतीब साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। 3 से 4 घंटे बैठने के बाद एक शख्स उठता है और कहता है कि इकरारुल हसन के साथ जो सवाल तय हुए थे वो करें और इनको रास्ता दिखाएं। लेकिन इकरारुल हसन बगैर किसी डर के बड़ी दिलेरी के साथ उठते हैं और उस बंदे के साथ कहते हैं कि कौन साहब मुझे रास्ता दिखाएगा, तुम दिखाओगे। बहरहाल बड़ी दिलेरी के साथ वो उठते हैं, लेकिन लोगों ने वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होने दी। उसके बाद काफी देर के बाद यानी कि 5 घंटे के बाद हक खतीब साहब वहां पर आते हैं और इतना मजमा जमा हो जाता है, इतना मजमा जमा हो जाता है कि हक खतीब साहब के सवालों के जवाब ना तो कुछ समझ आते हैं और ना ही हक खतीब साहब कोई जवाब दे पाते हैं। जो मामला हुआ वो सब आपके सामने है। होता यह है कि वहां पर उनके चाहने वाले नारे लगाने लग जाते हैं इकरारुल हसन की तरफ, मतलब मारने दौड़ने के लिए समझ ले तैयार होते हैं, लेकिन हक खतीब साहब उनको मना भी करते हैं। इकरारुल हसन को हक खतीब साहब ने पप्पी भी दी और उसके बाद ये मामला सामने आता है कि इकरारुल हसन वहां से बगैर किसी रिजल्ट के वहां से निकलते हैं। अब होना ये चाहिए था कि हक खतीब साहब के पास जाहिर है इतना बड़ा आस्थाना है, वो उनको अपने साथ किसी कमरे में बिठा सकते थे, वहां पर ये दोनों बैठकर बात कर सकते थे, बेशक कैमरा लगा होता, वहां पर डिस्कस होती, लेकिन इस सारे मामले को एक बहुत बड़े हजूम में डिस्कस किया गया। ना तो किसी की बात समझ आई, ना कोई रिजल्ट निकल सका कि हक खतीब साहब गलत है या फिर इकरारुल हसन गलत है। बहरहाल इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो पूरे के पूरे मीडिया ने देखा, पूरे सोशल मीडिया ने देखा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। और उसके बाद इकरारुल हसन वहां पे बगैर किसी रिजल्ट के निकलते हैं और आकर कहते हैं जो झूठ मुझे लगा। वहां पर हक खतीब साहब ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और लोगों ने वहां पर हमें मारा, हमारे कैमरे छीने, हमारा बहुत बुरा हाल किया, हम बड़ी ही मुश्किल से वहां से निकले हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो फिर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इकरारुल हसन या फिर इनके ये जो 5-10 लोग थे ये वहां से सलामत बच के नहीं निकल सकते थे। और मुझे यूं लगता है कि ये बात करना गलत थी। इश्तियाल दिलाना ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जगह मैंने खुद देखा है कि वहां पर पुलिस के या फिर आम लोग थे जिन्होंने इकरारुल हसन को बिल्कुल अपने साथ में लिया हुआ था, कवर्ड किया हुआ था, और किसी भी शख्स को इकरारुल हसन के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। और वो बड़े तगड़े लोग खड़े थे जिनको क्रॉस करना मुश्किल था। लेकिन इकरारुल हसन का ये कहना कि वहां पर हमें लोगों ने मारा, हमारे कैमरे तोड़े, हमारे साथ ये किया वो किया, नो डाउट ऐसे भी हुआ होगा। जब वो वहां से निकले होंगे तो बहुत कुछ हुआ होगा, शायद पथराव भी किया गया हो या फिर इस तरह। लेकिन ये मामला मेरी समझ से बाहर है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे कैमरे तोड़ दिए गए हमारे साथ, क्योंकि अगर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। अगर रिकॉर्ड हुआ है तो वो दिखाना भी चाहिए था, उसको क्यों छुपाया गया? जब आप हर एक 10 मिनट के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये भी दिखाना चाहिए था कि हक खतीब साहब ने इश्तियाल दिलाया और इश्तियाल दिलाने के बाद जो है लोगों ने आपको मारा है, और जो मारा है वो वीडियो भी, वो फुटेज भी आपके पास होगी, उसको भी अपलोड करना चाहिए था। अच्छा, इकरारुल हसन ने एक और ऑप्शन भी रखा था कि हक खतीब साहब मेरे साथ किसी भी करीबी हॉस्पिटल में चले जाएं और वहां पर जितने मरीज हैं उनको शिफ्ट मारें और ठीक कर दें तो मैं इनका मुरीद बन जाऊंगा। लेकिन इसके जवाब में उन लोगों ने यह कहा कि प्यासा हमेशा कुएं के पास आता है, कुआं चल के प्यासे के पास नहीं जाता। और आप लोगों को याद होगा कि ये सारे का सारा मामला शुरू क्यों हुआ था, ये मैं आपको बताता चलूं। जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब कराची से चल के मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के पास जेलम पहुंचते हैं और वो नहीं मिलते, और उन्होंने देखा कि जब ये मामला सोशल मीडिया पर आता है तो इससे फेम और ज्यादा मिलता है, और फेम के साथ साथ आपकी वीडियोस भी वायरल होती हैं और आपकी ज़ाहिर है कमाई भी होती है। तो इकरारुल हसन को ये बात समझ आई कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। इकरारुल हसन का ये सब कुछ करने का मकसद
बेसिकली यही था कि वो और ज़्यादा फेम मिले। जाहिर है कि दिलेर बंदा ही ये सब कुछ कर सकता है, और हक खतीब बादशाह जहाँ पर लाखों की तादाद में उनके मुरीद चाहने वाले होते हैं, वहाँ पर जाना भी एक दिलेरी का काम है। लेकिन इकरारुल हसन ने दिलेरी का मुजाहरा ज़रूर किया, लेकिन इस सारे मामले का कोई रिजल्ट ना निकल सका। अब किसकी गलती है, कौन ठीक है, कौन गलत है, सारे का सारा मामला आपके सामने रखा है। आप लोग फैसला कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको कौन ठीक लगता है। आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर पढ़ूंगा और एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।